again, my friends, I greet you in the most precious name of our Lord and Savior Jesus Christ. एक बार फिर से मैं आप सभी को प्रभु यीशु मसीह में सलाम कहता हूँ। आप सबको प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह हो। और आज जैसा कि बाइबल स्टडी जो मैं ले रहा हूँ वो मैंने लिया है यशाया उसका 9:6 से 7 और यशाया उसका 11:1 से 2। और for today's Bible study, the scripture portion I have taken from Isaiah chapter 9 and verses beginning from 6 to 7, and also the same book of the Bible, Isaiah chapter 11 verses 1 and 2. Let us hear the word of God, what is written over here. For a child will be born to us, a son will be given to us, and the government will rest on his shoulders, and his name will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Eternal Father, Prince of Peace. Verse 7. Of the increase of his government and of peace there will be, and on the throne of David, and over his kingdom to establish it, and to uphold it with justice and with righteousness. From this time forth and forever, the zeal of the Lord of hosts will do this. In Hindi it is written over here, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया, और प्रभुता उसके कांधे पर होगी, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनकाल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी और उसकी शांति का अंत न होगा, इसलिए उसको दाऊद की राजगद्दी पर इस समय से लेकर सर्वदा के लिए न्याय और धर्म के द्वारा स्थिर किए हुए और संभाले रहेगा। सेनाओं के यहोवा के युद्ध में पूरा हो जाएगा। चैप्टर 11 वर्सेस 1 and 2, यहाँ पर इस प्रकार लिखा हुआ है, There shall come forth a shoot from the stump of Jesse, and a branch from his roots shall bear fruit. And the Spirit of the Lord shall rest upon him, the Spirit of wisdom and understanding, the Spirit of counsel and might, the Spirit of knowledge and the fear of the Lord. तब यिशै के ठूंठ में से एक डाली फूट निकलेगी और उसकी जड़ में से एक शाखा निकलकर फलवंत होगी। यहोवा की आत्मा, बुद्धि, समझ का आत्मा, युक्ति का आत्मा और पराक्रम का आत्मा और ज्ञान और परमेश्वर के भय का आत्मा उस पर ठहरा रहेगा। ये परमेश्वर का जीवता कलाम है। This is the living word of God, and may God bless us by hearing and reading His holy words. Let us pray before we start. Dear gracious Heavenly Father, we come into your presence, Lord. Be with us, and also, Lord, as I am going to take for today's Bible study on Advent, be with us. Open our hearts, mind, and soul, so we may grab your words. And also, Lord, when you will come, will bring 100-fold of fruit into your vineyard, and you will be glorified through our deeds and actions, Lord. And also we commit our today's Bible study, Lord, into your mighty hand. I want to speak, but send your Holy Spirit to me, so He will speak, and Lord, He will teach us the ways of your kingdom and of your will. Thank you, God, for hearing our prayer. Once again, I commit each and every one of us into your mighty hand. We ask this pray in Jesus' most precious name. Amen. अजीजों, जैसा कि हम एडवेंट सीजन को सेलिब्रेट कर रहे हैं, है ना? ये एडवेंट सीजन क्या है? द सीजन ऑफ फेथ, द सीजन ऑफ वेटिंग फॉर क्राइस्ट बर्थ, and the season of celebration for our Messiah, the Redeemer. In the Christian community, we always celebrate Advent season. And Advent season is just like the alarm of Jesus' coming. यीशु के आने का ये एक अलार्म होता है। और फिर हम ये देखते हैं हर साल कि जीसस आएंगे या जीसस जन्म ले रहे हैं, और हम उस त्योहार को सेलिब्रेट करते हैं। As a Christian community, we know that कि जो यीशु मसीह का जो बर्थ है उसका महीना जो है वो दिसंबर, और काफ़ी जो स्कॉलर्स कहते हैं कि दिसंबर नहीं अप्रैल। बहुत सारी भ्रांतियाँ इसके लिए है, मगर फैक्ट बात यह है कि यीशु का जन्म इस संसार में मानव जाति के उद्धार के लिए हुआ। और आज हम
कुछ पहलुओं को देखेंगे कि हम एडवेंट सीजन को हम क्यों मनाते हैं. Lots of things we have to do for this great celebration. If we see the real meaning of Christmas, then Advent starts in the beginning of December. It reminds us for God's prepared salvific work for His people. Let me put this thing in another way. Advent season is the reminder of God's promises. Advent season is the reminder of God's promises to be fulfilled in every individual's life in the image of Jesus Christ, the King and Messiah for all. यानी एडवेंट क्या है, ये हमें बताता है, ये एक रिमाइंडर है परमेश्वर की जो प्रतिज्ञा जो परमेश्वर ने इस संसार की उत्पत्ति से अपने लोगों के साथ की, वो यीशु मसीह के रूप में हर एक उस विश्वासी के जीवन में पूरी हुई जो विश्वासी यीशु मसीह पे विश्वास रखता था. That is called the Advent season. This is the meaning of Advent season. But we will see the significance and the history of Advent. So, meaning is the period of 4 weeks before Christmas. It is simple comprehension of human beings, but it is much more than that. ये उससे भी बढ़कर है. एडवेंट सीजन उससे भी बढ़कर है. ये एक एडवेंट सीजन उसकी तरह है कि एक राहगीर या एक ट्रैवलर वो प्लेटफॉर्म पे अपनी गाड़ी का वेट कर रहा है, और जब गाड़ी आती है तो उस गाड़ी के अंदर बैठकर वो अपने पर्टिकुलर डेस्टिनेशन के ऊपर या वहां पर चला जाता है. मगर जो प्रोसीजर है वो क्या है ना, उसके लिए जो प्रिपरेशन है जो वो ट्रैवलर करता है वो क्या है. द क्रिसमस सीजन is just like that. We all are the travelers and we are preparing ourselves for welcoming God's presence. और हम परमेश्वर के वेलकम के लिए या स्वागत के लिए हम अपने आप को इस सीजन के अंदर तैयार करते हैं. When we look out or when we see the most significant meaning of Advent, जब हम एडवेंट के बारे में उसके सिग्निफिकेंट मीनिंग को देखते हैं तो वो क्या है. एडवेंट इज द बिगिनिंग ऑफ द लिटर्जिकल ईयर इन वेस्टर्न क्रिश्चियनिटी. द टर्म एडवेंट इज ऑल्सो यूज्ड इन ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्सी फॉर 40 days नेटिविटी फास्टिंग which has practices different from those in the West. यहां पे कहने का ये मतलब है जो एडवेंट है अजीजों, वो क्या है, एक लिटर्जिकल ईयर है क्रिसमस का, जो कि वेस्टर्न क्रिश्चियनिटी जो पश्चिम जो सभ्यता है या पश्चिम जो मसीह समाज है उसके अंदर वो मनाया जाता था. और जब ये मनाया जाता था तो इसके अंदर ईस्टर्न जो ऑर्थोडॉक्सी यानी ये भी एक कम्युनिटी या ये भी एक चर्च है, वो 40 दिन की नेटिविटी जो फास्टिंग है उसको रिमाइंड करता था और 40 दिन का वो फास्टिंग करते थे, क्योंकि क्रिसमस के 4 संडे पहले है ना ये एडवेंट सीजन शुरू होता है, और कहीं पे 5 संडे पहले, वो हम आगे देखेंगे. फिर यहां पर जब हम देखते हैं कि एडवेंट कहां से अडॉप्ट किया गया, क्योंकि अगर हम देखें बाइबल में तो एडवेंट क्या था वो भी हम आगे देखेंगे, मगर हम इसका आज बेसिक जानेंगे कि ये कहां से अडॉप्ट किया गया. एडवेंट एक लैटिन वर्ड से अडॉप्ट किया गया जिसका मतलब होता है एडवेंटुस, जिसका मतलब होता है एडवेंटुस, और ये क्या बताता है, जिसका मतलब है कमिंग, अराइवल, ट्रांसलेटिंग. और जब आप ट्रांसलेट के अंदर ग्रीक के अंदर जब आप अनुवाद करते हैं, ट्रांसलेट करते हैं, उसका मतलब होता है पारोशिया, which means the Latin word, the Advent, adopted from the Latin word called Adventus, which means arrival, coming, or in Greek it is like parousia, the season of parousia, or the season of arrival, the season of coming Messiah. In the New Testament, it is the term used for the second coming of Christ. यानी अगर जब हम नए नियम के एडवेंट की बात करें तो यहां पर यह साफ साफ दर्शाया गया है
कि नए नियम का जो एडवेंट है वो है कि वेटिंग करना या वेट करना यीशु मसीह के आगमन का, यानी यीशु मसीह के द्वितीय आगमन का यहां पर वेट करने से मतलब है, या मसीह के आगमन का यहां पर इंतजार करने से मतलब है। फिर जब हम आगे देखते हैं, thus the season of Advent in the Christian calendar anticipates the coming of Christ from their different perspectives। यहां पर 3 प्रकार के पर्सपेक्टिव दे रखे हैं, 3 प्रकार के यहां पर विचारधारा है एडवेंट के बारे में, कि एडवेंट वास्तव में कितने डायमेंशंस को बिलीवर्स की लाइफ में या क्रिश्चियन कम्युनिटी की लाइफ में रखता है। पहला है द फिजिकल नेटिविटी इन बेथलेहम, यानी यीशु मसीह का जो जन्म बेथलेहम के अंदर हुआ। बेथलेहम का मतलब होता है द हाउस ऑफ ब्रेड। बेथ का मतलब है हाउस इन हिब्रू, और लहम का मतलब है ब्रेड। और इन अरेबिक वर्ड जब आप बात करते हैं तो लहम का मतलब होता है द पीस ऑफ मीट, यानी जो मांस का जो टुकड़ा होता है उसकी यहां पर बात है। तो इन द सेंस कि परमेश्वर है ना, जब हम यूहन्ना उसके पहले अध्याय उसके 14वें वचन को देखते हैं, when we see Gospel according to Saint John chapter 1 and verse 14, it is clearly stated that the word became flesh and dwelt among us. And what kind of word that was? That was God, who took the flesh image, the fleshly image, and he came to this world to give and to provide salvation to the world. और यहां पर जब हम देखते हैं कि कमिंग ऑफ क्राइस्ट से भी यहां पर बात की गई है, और यहां पर एक फिजिकल अपीयरेंस है परमेश्वर का बेथलेहम के अंदर, चरनी के अंदर। और दूसरा जब पर्सपेक्टिव देखते हैं एडवेंट का, वो है द रिसेप्शन ऑफ क्राइस्ट इन द हार्ट ऑफ द बिलीवर, यानी यीशु को या उस मसीह को हमारे हृदयों के अंदर क्या करना, ग्रहण करना, रिसीव करना। और तीसरा जो डायमेंशन है वो है एस्केटोलॉजिकल सेकंड कमिंग ऑफ जीसस, यानी द्वितीय आगमन यीशु मसीह का। तो यहां पर जो एडवेंट है वो 3 पर्सपेक्टिव को कवर करता है, यीशु मसीह का जन्म, यीशु मसीह का इस संसार के द्वारा एक्सेप्टेंस, या इस संसार का एक्सेप्टेंस करना कि यीशु को वो किस तरीके से अपने हृदय में रखते हैं। और तीसरा जो पर्सपेक्टिव है वो है पारोशिया से, यानी सेकंड कमिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट। फिर जब हम यहां पर हिस्ट्री देखते हैं एडवेंट की, कि इसका ओरिजिन क्या था, ये कहां से आया, तो जब हम देखते हैं इट इज नोन व्हेन द पीरियड ऑफ प्रिपरेशन फॉर क्रिसमस दैट इज नाउ कॉल्ड एडवेंट बिगेन, यानी तैयार रखना क्रिसमस के लिए, है ना, या सीजन के अंदर हमें तैयार रहना है 4 संडे पहले। फिर उसके बाद यहां पर देखते हैं इट वॉज द सर्टेनली इन एग्जिस्टेंस फ्रॉम अबाउट 480 AD, and the novelty introduced by the Council of Tours of 567 was to order monks to fast every day in the month of December until Christmas। यहां पर एक जो काउंसिल हुई, उस काउंसिल के अंदर ये बात है 480 AD के दशक की, और यहां पर जो काउंसिल ऑफ टूर्स था और 567 मेंबर्स के साथ उन्होंने इस एडवेंट सीजन को अडॉप्ट किया। और जो मॉन्क्स थे उनको ये बोला गया, क्रिश्चियन जो मॉन्क्स थे पहले हुआ करते थे, उनको ये बोला गया कि जब भी तुम्हें एडवेंट को सेलिब्रेट करना है तब तुम्हें क्या करना है, फास्टिंग को करना है, उपवास को करना है। और उस उपवास के साथ जब क्रिसमस आता है तो उस क्रिसमस तक आपको क्या करना है, उपवास करना है और एडवेंट को सेलिब्रेट करना है। और यहां पर यह विचारधारा काउंसिल ऑफ टूअर्स के द्वारा रखी गई, जिसमें 567 या 67 जो थे, इतने लोग थे, उनकी सहमति के अनुसार। फिर जब हम आगे देखते हैं
जब हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर है, इट इज इम्पॉसिबल टू क्लेम विथ कॉन्फिडेंस अ क्रेडिबल एक्सप्लेनेशन ऑफ द ओरिजिन ऑफ एडवेंट। यानी अगर हम एडवेंट की बात करें तो हम स्पष्ट रूप से नहीं कह सकते कि जो एडवेंट है उसका ओरिजिन या उसकी पुनरावृत्ति क्या थी, कहां से वो आया, मगर इसको सेलिब्रेट किया गया और काफी कुछ विचारधाराओं को मिंगलअप करके या उनको आपस में साथ में जोड़कर इस एडवेंट को सेलिब्रेशन का एक नाम दिया गया। दैट वी आर सेलिब्रेटिंग जीसस इज कमिंग, वी आर सेलिब्रेटिंग जीसस इज बर्थ, वी आर सेलिब्रेटिंग the parousia and that is called the Advent season। फिर आगे जब हम पढ़ते हैं, it is associated with the Advent as a time of patience was the period of fasting, known also as the nativity fast or the fast of December। यानी जो दूसरे जो समुदाय के क्रिश्चियन लोग थे उन्होंने इसको फास्टिंग का एक स्वरूप दिया कि हम क्या करेंगे, इस एडवेंट पे फास्टिंग को करेंगे और उसके द्वारा हम क्रिसमस को सेलिब्रेट करेंगे। अब उपवास का मतलब उन्होंने कैसे लिया? उपवास का मतलब अगर हम देखें तो एक जनरल डेफिनेशन इसकी मिलती है, स्किपिंग फूड फॉर गॉड, यानी अपने भोजन को छोड़ देना परमेश्वर के लिए। दैट इज कॉल्ड द ट्रेडिशनल मीनिंग और बिब्लिकल मीनिंग ऑफ फास्टिंग। बट व्हेन वी गो इनटू डीपर एंड डीपर फॉर टू नो द मीनिंग ऑफ फास्टिंग, तो क्या चीज है? फास्टिंग इज जस्ट लाइक टू हैव आवर कम्युनिकेशन, आवर यू कैन से हमारा जो संगति, आवर रिलेशनशिप परमेश्वर के साथ बांध लेना, और जिसमें प्रायोरिटी से परमेश्वर और समय को देना कि हमारा समय परमेश्वर के साथ कैसा है, और खाने से पीने से कोई उसमें मतलब नहीं होता है ना। ये बिब्लिकल मीनिंग और ट्रेडिशनल मीनिंग है फास्टिंग का। और फिर जब हम फास्टिंग का मतलब जब हम देखते हैं बाइबल के अंदर, तो मूसा के द्वारा भी फास्टिंग का मतलब हमें पता चलता है कि 40 दिन और 40 रात उसने उपवास किया, कुछ ना खाया और परमेश्वर के साथ सीने पर्वत पर रहा और उसके साथ वो संगति करता रहा और उसकी सुनता रहा। फिर एलिया की जब हम बात करते हैं, एलिया ने भी पहाड़ पे फास्टिंग करी 40 दिन 40 रात की, और वहां पर भी उसकी संगति परमेश्वर के साथ थी। राजा दाऊद भी जब उपवास करता था तो दुआ के अंदर बैठता था। यानी बहुत सारी चीजें इसके पीछे आती हैं। मगर यहाँ पर जब ये मॉन्क्स थे या जो ये सिनेद्रिन थी या जो ये कम्युनिटी के लोग थे, इन्होंने इस एडवेंट को एक फास्टिंग सीजन का रूप दिया और कहा कि हम फास्टिंग के साथ अपनी संगति को परमेश्वर के लिए और मजबूत करेंगे और परमेश्वर के साथ हम अपने प्रेजेंस को बिताएंगे और परमेश्वर के प्रेजेंस के अंदर हम चलेंगे और उसके जो प्रॉमिस, जो मसीह जो है यीशु मसीह, उसका हम वेट करेंगे। और ये एक सिंबॉलिक एक एडवेंट सीजन को उन्होंने पूरे वर्ल्ड के अंदर रिप्रेजेंट किया और तब से जो एडवेंट सीजन है हो सकता है मनाया जाता हो। फिर आगे जब हम देखते हैं, अकॉर्डिंग टू सेंट ग्रेगरी ऑफ ट्रूअर्स, द सेलिब्रेशन ऑफ एडवेंट बिगेन इन द 5th century when the bishop Perpetuus directed the start, that is starting with the Saint Martin's Day on 11 November until Christmas. One fast 3 times per week. This is why Advent was sometimes also named as the Lent of Saint Martin. This practice remained limited to the Diocese of Tours until the 6th century. अब यहाँ पर जो बिशप ग्रेगरी परपेटुस थे, उन्होंने डायरेक्ट किया कि जो सेंट मार्टिन, जो वो भी एक बहुत बड़े परमेश्वर के दास रहे हैं, वक्ता रहे हैं, और उस ट्रेडिशन के अंदर उन्होंने कहा कि जो सेंट मार्टिन डे जब हम मनाते हैं 11 नवंबर से, हम इसको ऑब्जर्व करेंगे क्रिसमस तक, और 3 बार आपको सप्ताह के अंदर फास्टिंग करना या उपवास करना जरूरी है। और इसलिए इसको कहते हैं
एडवेंट सीजन को उनके कम्युनिटी के अंदर कहते हैं, समटाइम्स इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द लेंट ऑफ सेंट मार्टिन। यानी जो सेंट मार्टिन है उनका क्या है, ये लेंट है, विलाप है। फिर आगे जब हम देखते हैं कि ये 6th सेंचुरी तक ये प्रैक्टिसेस चली और उसके बाद इसको बंद कर दिया गया डायसिस ऑफ टूर्स के अंदर। फिर ही लिटर्जी ऑफ एडवेंट रिमेन अनचेंज्ड विद द सेकंड वेटिकन काउंसिल इंट्रोड्यूस्ड माइनर चेंजेस। और जब सेकंड वेटिकन काउंसिल हुई उसके अंदर भी इन चीजों को रखा गया और उसके अंदर माइनर यानी छोटे मोटे अमेंडमेंट किए गए कि एडवेंट सीजन को किस तरीके से हम सेलिब्रेट करें या इस पे हमारी आस्था क्या होनी चाहिए। फिर जब हम आगे और देखते हैं इसको, डिफरेंशिएटिंग द स्पिरिट ऑफ लैंड फ्रॉम दैट ऑफ एडवेंट, एम्फसाइजिंग एडवेंट as a season of hope for Christ coming, now as a promise of his second coming। यानी जो वेटिकन काउंसिल के अंदर जब एडवेंट को डिस्कस किया गया तो सबकी सहमति के अनुसार ये कहा गया कि हम किस पे एम्फसाइज करेंगे, हम एम्फसाइज करेंगे प्रभु यीशु मसीह के आगमन के बारे में और उसके द्वितीय आगमन के बारे में, यानी उसके जन्म के बारे में कि परमेश्वर के प्रॉमिसेस के अनुसार या उसके वायदे के अनुसार वो पैदा हुए। और फिर हम क्या करेंगे, जैसा कि उन्होंने वायदा किया यीशु मसीह ने अपने लोगों से कि मैं वापस आऊंगा, आई विल कम बैक, है ना। और इसलिए इसको पारोशिया का नाम भी दिया गया। दैट इज कॉल्ड द एडवेंट सीजन। फिर जब हम बात करते हैं ना, तो सर्टेन थिंग्स we will try to comprehend regarding the day of Advent in terms of prophecy and ground preparation for fulfillment of the promises of God। हम देखेंगे आज कि वास्तव में हर एक बिलीवर जो मसीह समुदाय का है, एडवेंट सीजन उसके जीवन में है क्या। फॉर मी, जब मैं वचन को अजीजों पढ़ रहा था तब मैंने भी इन चीजों के बारे में विचारा, मैंने भी इन चीजों के बारे में सोचना शुरू किया कि why we should celebrate Advent season, why not we can celebrate direct Christmas or 25th of December as a Christmas celebration or festival in Christian community। हम क्यों नहीं ऐसे डायरेक्ट हम 25 दिसंबर को ही सेलिब्रेट कर लेते, क्यों हम एडवेंट सीजन को सेलिब्रेट करते हैं, उसमें हम गीतों को गाते हैं, है ना, बहुत प्रकार के हम प्रोग्राम्स करते हैं, हम क्या क्या चीजें करते हैं, है ना। और फिर उसके बाद हम कैरल्स को गाते हैं, है ना, मसीह यीशु का संदेश हम दुनिया तक पहुंचाते हैं, है ना। तो हम डायरेक्ट 25 दिसंबर को क्यों नहीं कर लेते, क्योंकि 25 तो मेन है। क्यों हमें एडवेंट सीजन को फॉलो करना है, या फिर फॉलो नहीं करना तो हम क्यों इस एडवेंट सीजन को सेलिब्रेट करें। और तब बाइबल का ये कलाम पहुंचा कि एडवेंट जो सीजन है, इट वॉज द टर्म ऑफ प्रोफेसी बाय द प्रॉफिट्स फॉर मसाया, फॉर क्राइस्ट कमिंग। यानी ये जो एडवेंट है ये एक भविष्यवाणी के रूप में भी हमारे जीवन के अंदर उजागर होता है यीशु मसीह के आगमन के बारे में। यानी यीशु मसीह के आगमन के लिए ये हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। ये पहली चीज एडवेंट की होती है। और जब हम देखते हैं कि ये जो इंतजार था, जो सेलिब्रेशन था एडवेंट का, ये बहुत पुराना है, ये नया नहीं है। और पुराने नियम से भी अगर हम देखें, मेन अगर हम मतलब देखें एडवेंट सीजन का, तो they were waiting and waiting and waiting for Christ Jesus। वो अपने जीवन में इंतजार कर रहे थे यीशु मसीह के आने के लिए, because they wanted to be redeemed from their burden of sins। वो चाहते थे कि हम अपने पापों के बोझ से बचा लिए जाएं। That's why they were waiting, and they used to prepare their ways for God। And the prophets, they played vital role in that, and they used to prophesy among them by telling them
Jesus, the Messiah, will come. The Messiah will come to give you salvation, to give you peace, to give you joy, which is abundant. और यहां पर बहुत सारी चीजें हैं. फिर जब हम देखते हैं एडवेंट, when God created the whole universe, when God created Adam and Eve, the human beings, and what happened? क्या हुआ? उन्होंने पाप को किया, है ना, और वो अपने पाप के कारण गिर गए. मृत्यु संसार में इंट्रोड्यूस हो गई, मृत्यु संसार में आ गई. परमेश्वर के प्रेजेंस से वो निकाल दिए गए, मगर फिर भी परमेश्वर ने क्या किया? उनको संभाल कर रखा. अगर आप दूसरे वर्ड्स के अंदर ये कहें कि एडवेंट का एक प्रॉमिस कहां पर है, तो एडवेंट की प्रॉमिस है जेनेसिस चैप्टर 3 and verse 15. very much familiar word with all of us, with Christian community. और वो क्या है? वो साफ साफ यहाँ पर गॉस्पल, you can say the advent, है ना, ये एक प्रोफेसी परमेश्वर के द्वारा यानी वायदे के रूप में ये की गई. और यहाँ पर जेनेसिस चैप्टर 3 वर्स 15 के अंदर लिखा हुआ है, मैं आपके सामने पढ़ दूंगा. और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा, वे तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को क्या है? डसेगा. That is called the promises of God. I will put enmity between you and the women, and between your offspring and her offspring. He shall bruise your head, and you shall bruise his heel. और यहाँ पर जब हम देखते हैं तो ये प्रोफेसी एक एडवेंट के रूप में परमेश्वर ने स्वयं करी. तो एडवेंट का यहाँ पर क्या मतलब हुआ चीजों? एडवेंट का मतलब जो हम देखते हैं, इट इज द सीजन टू प्रिपेयर आवरसेल्व्स फॉर गॉड्स प्रॉमिसेस, है ना, कि हम अपने आप को तैयार करें परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं के सहभागी होने के लिए. और दैट्स व्हाई इट वाज द ग्राउंड प्रिपरेशन फॉर सैल्विफिक वर्क ऑफ रिडेम्पशन बाय गॉड. ये एक ग्राउंड प्रिपरेशन थी. यानी जब हम किसी बिल्डिंग को बनाते हैं तो सबसे पहले हम नींव को खोदते हैं. नींव अगर मजबूत है तो बिल्डिंग मजबूत होगी. नींव अगर कमजोर है तो हमारी जो बिल्डिंग है वो भी कमजोर होगी. और दैट वाज द ग्राउंड प्रिपरेशन बाय गॉड फॉर सैल्विफिक वर्क, रिडेम्पशन के लिए, यानी छुटकारे के लिए, लोगों को देने के लिए. और इसलिए यहां पर जब जब व्यवस्था को दिया गया, परमेश्वर ने उनको सिखाया कि तुम्हें क्या करना है? प्रिपेयर करना है अपने आप को, प्रिपेयर करना है अपने आप को कि तुम मेरी संगति में रह सको, मेरे साथ रह सको. और टाइम टू टाइम व्हेन गॉड सेंट हिज प्रॉफिट्स टू द वर्ल्ड, प्रॉफिट्स टू द कम्युनिटी, prophets to the society, in order to bring the transformation, in order to bring the kingdom of God on the earth. मगर उसके लिए क्या एक वो चीज थी, क्या उसके लिए कंडीशन थी? They must follow God's commandment. और उसमें सबसे बड़ी चीज जो थी वो ये थी, God promised to send his son for redemption. यानी परमेश्वर ने वायदे को किया अपने पुत्र भेजने के द्वारा कि मैं वायदा करता हूं कि तुम्हें छुटकारा मैं दिलाऊंगा, तुम्हारे पापों से छुटकारा दिलाऊंगा और तुम्हारे सारे पापों का बोझ मैं अपने ऊपर ले लूंगा. You have to prepare for that. You have to prepare for that. तुम्हें इसके लिए तैयार होना, तुम्हें तैयार होना पड़ेगा. और दैट वॉज द एडवेंट सीजन फॉर प्रिपरेशन, है ना. उनका ये एडवेंट सीजन आप कह सकते हैं प्रिपरेशन का, तैयारी का समय, कि वो किस तरीके से तैयार होते हैं परमेश्वर पिता के साथ सहभागी होने के लिए. एंड दैट्स व्हाई द बिशप ग्रेगरी और बिशप परपेटस और ग्रेगरी और ये जितने भी थे, इन्होंने इन सब चीजों को इसी तरीके से लिया कि हम क्यों वेट करें?
क्योंकि हमने पापों को किया और यीशु मसीह के द्वारा उद्धार हुआ और उसने अपनी जान को हमारे लिए दिया, मगर क्या है, हमें आगे के लिए भी तैयार होना है। यानी अगर देखा जाए अजीजों, प्रोफेसी के रूप में कितने प्रॉफिट्स आते हैं, कितने परमेश्वर के लोग आते हैं, कोई सही भी होते हैं, कोई गलत भी होते हैं, मगर हमेशा जो प्रॉफिट है वो बाइबल से ही बोलता है कि अपने आप को तैयार करो, अपने आप को तैयार करो। तो हमारा एडवेंट तो जब हम जन्म लेते हैं तब से ही शुरू हो जाता है, जब हम मैच्योरिटी लेवल पे आते हैं तब से ही हमारा एडवेंट शुरू हो जाता है ना। हम क्यों क्रिसमस को मनाते हैं? क्योंकि क्या है, जो प्रोफेसी जो की गई थी परमेश्वर ने अपने लोगों के द्वारा, वो हमारे जीवन में यीशु मसीह के आने से पूरी हो गई। That's why Advent is a season for prophecy to be fulfilled in the life of people, है ना। ये हमारे जीवन में पूरा हुआ। सेकंड चीज जब हम देखते हैं वो है बिब्लिकल एडवेंट टू बी रिलाइड अपॉन द प्रोमिसेस ऑफ गॉड। जैसा मैंने आपको बताया कि जो अगर हम बाइबल से एडवेंट की बात करें तो ये क्या था, ये एक ऐसा सीजन था जो परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं के ऊपर क्या था, भरोसा रखता था, आधारित था, समर्पित था, आश्रित था। ये था एडवेंट का दूसरा मीनिंग, द बिब्लिकल एडवेंट टू बी रिलाइड अपॉन द प्रोमिसेस ऑफ गॉड। तो यहां पर फिर आता है व्हाई एडवेंट इज नीडेड फॉर पीपल, क्यों जो एडवेंट है वो लोगों के लिए जरूरी है। फिर हम देखते हैं हु इज दिस मसाया, यानी परमेश्वर ने प्रॉमिस तो कर दिया प्रोफेसी के द्वारा, मगर अब ये मसीह है कौन, हम क्यों इस एडवेंट को सेलिब्रेट करें, क्यों हम वेट करें परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं के ऊपर, क्यों हम वेट करें परमेश्वर ने जो वायदे हमसे किए हैं, हम क्यों करें इस चीज को। और जब हम देखते हैं तब यशाया ने ये साफ साफ कहा है, जो यीशु मसीह की क्वालिटी को बताता है। और यहां पर जो वर्सेस मैंने आपके सामने पढ़ी वो यही थी कि आपको क्यों मसीह यीशु पर क्या करना है, कि उसके लिए आपको वेट करना है, क्योंकि द गवर्नमेंट विल रेस्ट ऑन हिज शोल्डर्स। सबसे पहली चीज यीशु मसीह के ऊपर या उसके कंधों के ऊपर क्या होगा, है ना, गवर्नमेंट टिकेगी, यानी उसके ऊपर ही जो परमेश्वर का जो राज्य है ना, वो आधारित होगा। यीशु मसीह का राज्य उसके कंधों पर होगा, प्रभुता उसके कंधों पर होगी, यानी वो प्रभुता करेगा, सब चीजें गवर्नमेंट उसके हाथ में होगी, है ना, पहली चीज। और वो किस प्रकार का गवर्नमेंट था, वो था परमेश्वर का गवर्नमेंट, परमेश्वर की सरकार, परमेश्वर की प्रभुता जो वो लोगों पर करना चाहता है। परमेश्वर अपने लोगों को बचाना चाहता है, ये एक प्रॉमिस थी, है ना। और यही यशाया प्रोफेसी के द्वारा बताना चाहता है कि तुम्हें क्यों उस मसीह का वेट करना है, क्योंकि प्रभुता उसके कांधों पर होगी। He will be the king and the judge at the same time. वो राजा भी होगा और वो न्याय भी होगा, वो राजा भी है और न्याय भी है, क्योंकि हमारे यीशु मसीह में हर क्वालिटी है, तभी तो वो एक योग्य परमेश्वर है, तभी वो सामर्थी और समर्थ परमेश्वर है। अगर आप देखें इस संसार का गवर्नमेंट का सिनेरियो, प्रधानमंत्री अलग है, राष्ट्रपति अलग है ना, जज अलग होता है, सुप्रीम कोर्ट का जज अलग है और हाई कोर्ट का जज अलग है, हर कोई अलग अलग है अपने औहदों के ऊपर, अपने पोजीशन के ऊपर। मगर यहां पर यशाया उस मसीह के बारे में कहता है, हु इज दिस मसाया, प्रभुता सबसे पहले उसके कांधे पर होगी, और क्योंकि वही राजा है और वही न्यायी है, वही राजा है और वही न्यायी है। दूसरी चीज जब हम देखते हैं, ही विल बी द वंडरफुल वंडरफुल काउंसलर, है ना, वंडरफुल काउंसलर। और वंडरफुल काउंसलर का जब हम यहां पर
मीनिंग देखते हैं अजीजों, तो यहां पर पाया जाता है वो यशाया उसके 9 के 6 के अंदर, और साफ साफ यहां पर दे रखा है वंडरफुल काउंसलर का मतलब कि वो काउंसलिंग किस तरीके से करता है। काउंसलर का हमेशा एक उद्देश्य होता है लोगों को सही मार्गदर्शन करना, लोगों को सिखाना, लोगों को सही राय देना। और यहां पर साफ लिखा हुआ है कि अद्भुत युक्ति करने वाला, है ना, अद्भुत युक्ति करने वाला, अद्भुत युक्ति करने वाला। अब ये अद्भुत युक्ति क्या है कि अद्भुत, इसके अंदर वंडरफुल जो नेस है वो क्या है ना, वंडर क्या है इसके अंदर। परमेश्वर जब मार्गों को किसी के लिए निकालता है अजीजों, तो हो सकता है वो इंसानों के अकॉर्डिंग ना हो सकता है वो हमारी समझ से परे हो सकता है कि वो हमें समझ में ना आए, मगर जब परमेश्वर जब निकालता है उस मार्ग को हमारे लिए जिसमें हमारी भलाई होती है, और जब हम विश्वास के साथ उस मार्गों पर चलते हैं, तभी हम कहते हैं परमेश्वर तेरा धन्यवाद, तूने हमें बचाया, तेरा धन्यवाद कि तूने हमें बुद्धि दी, तेरा धन्यवाद तूने हमें ज्ञान दिया कि हम इस ट्रैप में या इस जाल के अंदर या हम ऐसी दुष्टता के अंदर ना पड़े। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद परमेश्वर। दैट इज कॉल्ड द वंडरफुल वंडरफुल काउंसलर। और इसलिए जब यहाँ पर जब हम देखते हैं तो यहाँ पर साफ साफ बताता है वंडरफुल काउंसलर। अगर हम बात करें, when Jesus told to his disciples, I am going to my Father and I will send the counselor, है ना, पैराक्लेटस, मैं एक काउंसलर भेजूंगा, है ना। वो कौन है? पवित्र आत्मा। क्योंकि पवित्र आत्मा का ये कार्य है कि वो किस तरीके से वो अपने लोगों को काउंसलिंग करे, कैसे उनका मार्गदर्शन करे, कैसे उनको ये बताए कि परमेश्वर जिंदा है, परमेश्वर तुम्हारे साथ है ना। हमारे दिल को क्या करने के लिए? हल्का करने के लिए, हमारे दिल को परमेश्वर पिता के साथ जोड़ने के लिए। अगर एक अच्छी काउंसलिंग होगी तो हमारा जीवन भी अच्छा होगा। अगर काउंसलिंग बेकार है तो हमारा जीवन कहीं पे भी भटक सकता है। एक भेड़ बकरी की नाई कहीं पे भी हम जा सकते हैं। एक अच्छा चरवाहा अच्छा काउंसलर होता है, और वो है होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा, और जो हमें विजडम और नॉलेज देता है। द स्पिरिट ऑफ काउंसिल, द स्पिरिट ऑफ स्ट्रेंथ, द स्पिरिट ऑफ नॉलेज, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, द होली स्पिरिट गिव्स अस द सेंस ऑफ फियर ऑफ द लॉर्ड। वो हमें क्या है? भय का आत्मा भी देता है कि हम परमेश्वर से डरें। परमेश्वर से डरने की कब बात है? मैंने 2 प्रकार के डर बताए थे। पहला डर, जब हम किसी की इज्जत करते हैं, किसी को प्यार करते हैं, रेस्पेक्ट करते हैं, तो एक वो डर होता है जो डिसिप्लिनरी होता है, डिसिप्लिन के अंदर होता है। और एक ऐसा डर जब हम कोई गलत काम करते हैं और हम ये डरते हैं कि हम पकड़े ना जाएं, या मृत्यु का डर, वो अलग डर होता है। अगर मृत्यु का डर हमारे जीवन में है तो परमेश्वर का भय हमारे जीवन में नहीं है। अगर परमेश्वर का भय हमारे जीवन में है तो ये जितनी भी प्रॉब्लम्स है या टेंशन है, इसका कोई भी भय हमें नहीं सता सकता। तो ये भय, परमेश्वर का जो भय है, पवित्र भय है ना, अंडर द डिसिप्लिन, वो पवित्र आत्मा हमको देता है। फिर जब हम देखते हैं माइटी गॉड विच मीन्स क्रिएटर, द सॉवरेन गॉड एंड द ओमनीनेस इन हिम, वी कैन फाइंड आउट। यानी सर्वव्यापिता, सर्वज्ञता, है ना, सर्वदर्शिता, हर प्रकार की चीजें, ओमनी जो है, ओमनी प्रेजेंस, ओमनीशिएंट और ओमनीपोटेंट, ये हमारा परमेश्वर है, क्रिएटर है। और इस तरीके से यहां पर वो यीशु मसीह के बारे में बताता है कि कौन है तुम्हारा मसीह, कौन है हमारा मसीह जिसको हमें वेट करना है। वो परमेश्वर है, पराक्रमी परमेश्वर है, अद्भुत युक्ति करने वाला पवित्र आत्मा है ना। He was trying to give the basic understanding of Messiah,
that He is God, He is King, He is Judge, and He is holy. He is holy. फिर यहां पर जब हम और चीज देखते हैं, इटर्नल फादर, द फादर हु इज इटर्नल एंड इमॉर्टल इन नेचर. यानी अगर हम संसार की बात करें, हम तो नाशवान हैं, और यहां पर एक क्वालिटी और मसीह की आती है, और वो ये है कि तुम्हारा जो मसीह है परमेश्वर होने के साथ साथ इमॉर्टल, अमर है. इसको कोई मार नहीं सकता, कोई हरा नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर जीवित है और उसने अपने जीवन के कारण हमको भी जीवित रखा है, हमको भी जीवित बनाया है. हम तो इंसान है अजीजों, अगर हम भी अमर होते तो परमेश्वर और हमारे में क्या डिफरेंस होता? हम भी छोटे मोटे परमेश्वर हो जाते इस पृथ्वी के, है ना? हम भी छोटे मोटे परमेश्वर होते. मगर यहां पर जब परमेश्वर ने हमें समय में बांध दिया, है ना, 80 साल, 70 साल, 100 साल, 150 साल, 120 साल, प्रेज गॉड. अगर 120 साल, आज तो अजूबा होता है 120 साल, अरे 120 साल, है ना? हम लिमिटेड है अजीजों, और यहां पर बताया है जिस मसीह की तुम बाट जो रहे हो वो क्या है? इटर्नल फादर. फादर हु टेक्स केयर ऑफ हिज क्रिएशन, अ फादर हु इज द हेड ऑफ द फैमिली. और यहां पर जो मसीह है वो फादर है, पिता है, अनंत काल का पिता है. फिर प्रिंस ऑफ पीस. नाउ प्रिंस कंसेप्ट हट का, है ना? किंग भी है, राजकुमार भी है, सब कुछ यहां पर यशाया प्रोफेसी कर रहा है. क्वालिटी यहां पर बता रहा है परमेश्वर की, यहां पर क्वालिटी उस मसीह की बता रहा है कि हमें परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं के ऊपर हमें वेट करना है. क्योंकि परमेश्वर ने इस संसार को देखा होगा तो कहा कि कोई भी ऐसा मनुष्य जो इस मिट्टी से बनाया गया वो सामर्थ नहीं रखता उद्धार देने की. मैं परमेश्वर हूं, मैं ही सामर्थ रखता हूं. मैं शरीर में आऊंगा और अपने लोगों को छुटकारा दूंगा. इसलिए प्रिंस ऑफ पीस यानी शांति का राजकुमार. और सब कुछ है अजीजों, अगर जीवन में शांति नहीं है तो बेकार है. इसलिए यीशु मसीह को एक्सेप्ट करते हुए उसकी शांति हमारे जीवन में होनी है. और इसलिए जो एडवेंट है वो बताता है कि परमेश्वर पिता की जो ये प्रतिज्ञा जो मसीह के रूप में हमारे जीवन में पूरी हुई, उसकी क्वालिटीज क्या क्या है. हम गर्व के साथ कहते हैं, हम गर्व के साथ हम अपने परमेश्वर पे घमंड करते हैं. क्यों? क्योंकि हम अपने परमेश्वर की, यीशु मसीह की क्वालिटी को जानते हैं. हम जानते हैं वो जीवित है, हम जानते हैं वो पवित्र है, हम जानते हैं शांति उसमें पाई जाती है, हम जानते हैं कि वो सनातन का परमेश्वर है, हम जानते हैं सब कुछ उसी के हाथ में है, हम जानते हैं ही इज योग्य परमेश्वर, वो कैपेबल है, वो योग्यता को रखता है, हम जानते हैं वो जीवित है, हम जानते हैं कि उसने अपने लोगों को जीवन से दे दिया, जीवन से भर दिया. इसलिए हम अपने परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पर आधारित हैं उसी से. और यहां पर अगर आप देखें ट्रिनिटी कंसेप्ट आता है. फादर आ गया, सन आ गया और होली स्पिरिट आ गया, है ना? होली स्पिरिट वंडरफुल काउंसलर, सन प्रिंस ऑफ पीस, और फादर ऑलमाइटी गॉड इटर्नल फादर. तीनों कंसेप्ट यहां पर क्लियर होते हैं, जिसका मतलब है कि जो मसीह आएगा वो अपने आप में संपूर्ण परमेश्वर है. हालेलुया. इसके लिए एक प्रेज द लॉर्ड बनता है अजीजों. जिस परमेश्वर की तुम बाट जो रहे हो, जिस मसीह की तुम बाट जो रहे हो, वो अपने आप में संपूर्ण परमेश्वर है. दैट इज कॉल्ड द एडवेंट सीजन व्हिच इज रिलाइड अपॉन द प्रॉमिसेस ऑफ गॉड. तीसरी चीज और आखिरी चीज जब हम देखते हैं, द फुलफिलमेंट ऑफ एडवेंट इन क्राइस्ट जीसस. यानी जो सीजन है, चाहे वो किसी भी रूप में क्यों ना बनाया जाए, ओवरऑल इसका जो बेसिक जो फोकस पार्ट है वो है यीशु मसीह
मसीह यीशु। इसलिए तो हम बनाते हैं। अगर क्रिसमस में से आप खुदा यीशु मसीह को हटा दें तो क्रिसमस किस काम का है? अगर उसको हटा दें तो एडवेंट सीजन किस काम का? किसी का काम का नहीं है सीजन। एडवेंट सीजन इज जस्ट लाइक वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर सेकंड कमिंग ऑफ जीसस, क्योंकि यीशु मसीह ने जन्म लेकर और अपनी मृत्यु के द्वारा हमारा उद्धार कर दिया, रिजरेक्शन के द्वारा उद्धार कर दिया, है ना? That was called also the Advent season for all of us, and now we have to wait for parousia, उसके सेकंड कमिंग के बारे में भी हमें वेट करना है। एडवेंट सीजन कभी खत्म नहीं होगा सीजन, ये तो चलता रहेगा जब तक या तो हम परमेश्वर के पास नहीं जाते या परमेश्वर, है ना, महिमा के साथ इस संसार में नहीं आता। ये तब तक चलता रहेगा। मगर एडवेंट केक बांटने से नहीं, एडवेंट सीजन अच्छे कपड़े या पेंट करने से ये कुछ भी नहीं है। एडवेंट सीजन हमारा जीवन है जिसमें हमें तैयार होना है, जिसमें हमें प्रिपेयर होना है परमेश्वर के साथ रहने के लिए, परमेश्वर के स्वागत के लिए, परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाने के लिए। और इसलिए ये जो एडवेंट है ना, एडवेंट इज द सीजन ऑफ होप इन क्राइस्ट ड्यूरिंग दिस पैंडेमिक जंक्चर। एडवेंट इज वुंड हीलिंग सीजन फॉर ब्रोकन हार्टेड पीपल। एडवेंट इज द सीजन ऑफ ग्रेस एंड अबंडेंट लव ऑफ गॉड टू द वर्ल्ड। ये तीन बातें यहां पर इस सीजन में हमें ध्यान रखना है। पहली बात, द सीजन ऑफ होप इन क्राइस्ट इन दिस पैंडेमिक जंक्चर, यानी जो ये पैंडेमिक जंक्चर है, समय है, इसके अंदर ये हमारे जीवन में एक आशा को रखता है जो कि प्रभु परमेश्वर की प्रॉमिसेस पे आधारित है कि मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हें बचाऊंगा। दूसरा, एडवेंट इज द वुंड हीलिंग फॉर ब्रोकन हार्टेड पीपल। और वास्तव में ये जो हृदय के टूटे गए व्यक्ति हैं, जो ग्रसित व्यक्ति हैं, टूटे हुए मन के हैं, उनके लिए ये है कि जो जख्म है वो परमेश्वर पिता के उन प्रतिज्ञाओं के द्वारा भर दिए जाएंगे और जीवन में आशीषों के साथ साथ शांति और उसका प्यार झलकाया जाएगा। तीसरा, एडवेंट द सीजन ऑफ ग्रेस एंड अबंडेंट लव ऑफ गॉड टू द वर्ल्ड। और वास्तव में जो एडवेंट सीजन है ये परमेश्वर का अनुग्रह ही है और उसका बहुतायत का प्यार है कि उसने हम सबको अपनी प्रतिज्ञाओं के अंदर रखा कि तुम मेरे बेटे या मेरे बच्चे हो, बेटियां हो, मैं आऊंगा और तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा और एक स्थान दूंगा जहां पर तुम मेरे साथ रहोगे और मेरे नाम को हमेशा युगानुयुग ध्यान रखोगे। वहां पर ना मृत्यु होगी, वहां पर ना कोई समय होगा। हम परमेश्वर पिता की ऐसी ही महिमा करेंगे अजीजों, ऐसे ही महिमा करेंगे। Even though we all are wounded in this year, but still we have grace and mercies of God on us. हालांकि हम हो सकता है काफी परिवार ने इस साल कुछ ना कुछ खोया हो, कुछ ना कुछ पाया हो, मगर फिर भी हमारे लिए ये जो ईयर है ना, ये एक चैलेंज के रूप में हमारे सामने आया, हमारे विश्वास को हिलाने के लिए आया कि क्या हम अभी भी अपने परमेश्वर पे विश्वास रखते हैं, क्या हम अभी भी परमेश्वर के लिए समर्पित हैं। अगर है तो 2021 प्रेज गॉड आशीषों भरा होगा। और वास्तव में हर ईयर जब हम परमेश्वर को समर्पित कर देते हैं तो बस हमारा काम सिर्फ चलना होता है उसके पीछे आशीषों। परमेश्वर बचाते हैं, परमेश्वर हम सबके साथ रहते हैं। ये एडवेंट सीजन जब हम सेलिब्रेट कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के जन्म का, आइए हम इसको सेलिब्रेट करें उन लोगों के साथ जो कि मन के टूटे हुए हैं। आइए हम सेलिब्रेट करें उन लोगों के साथ प्रार्थनाओं के द्वारा कि परमेश्वर उनके जख्मों को आप भर दें। हम उनके लिए प्रार्थना करें, हम उनके साथ रहें। ये एडवेंट सीजन को हम
एक श्रद्धांजलि के रूप में उन लोगों को दें जो कि इस पैंडेमिक जंक्चर के अंदर या इस पैंडेमिक समय के अंदर मर चुके हैं। अगर हमारा विश्वास है वो परमेश्वर पिता के साथ है, क्योंकि परमेश्वर सबकी सुध रखता है, परमेश्वर सबको जानता है। इसलिए हमारा मसीह हमारा परमेश्वर है, सामर्थी और योग्य से भरा योग्यतापूर्ण परमेश्वर, और उसने हमें भी योग्य बनाया, उसने हमें भी जीवन दिया। आइए हम अपने स्वरों को झुकाएं और परमेश्वर पिता से प्रार्थना मांगें। Dear gracious Heavenly Father, once again, Lord, we come to your presence, we come unto your feet, O Lord, and we put all supplications in front of you, Lord. You are the Master, you are the wonderful Counselor, you are the Spirit of strength, you are the Spirit of comprehension, you are the Spirit of wisdom, you are the holiest of holy, you are the Prince of Peace, you are the Eternal Father, you are Almighty God. You have these such qualities, Lord. And Lord, we are very thankful to you for Jesus Christ that you have sent to this world. आपने जब अपने पुत्र को जब इस संसार में भेजा, प्रभु हम धन्यवाद देते हैं। और हम धन्यवाद देते हैं जबकि हम इस एडवेंट सीजन को मनाते हैं। हमारे साथ रहें और पिता हम जानें कि वास्तव में एडवेंट सीजन क्या है। हम जानें कि एडवेंट सीजन हमारे जीवन में क्या मायनों को रखता है। प्रभु, जैसा कि आज का जो वचन आपके द्वारा यहाँ पर हमने सीखा, हमारे साथ बना रहे और हम अपने जीवन में 30, 60 और 70, 100 गुना हम फल लाएं पिता। आपके नाम को महिमा दें, आपके नाम को ऊंचा उठाएं। एंड लॉर्ड, those who are wounded from their spirit, be with them, Lord. And also we commit every broken-hearted people into Almighty hand, Lord, this year. Lord, be with them and send your comfort in their hearts. Thank you, God, for hearing our prayer. We ask this pray in Jesus' most precious name as you taught us to pray. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come. Thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread. Forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us. And do not let us fall into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, power and the glory, forever and ever. Amen. God bless you all. आप परमेश्वर आप सबको आशीष दे और इस एडवेंट के ऊपर हम सब मसीह संगति करें और हम परमेश्वर पिता को धन्यवाद दें इस जीवन के लिए कि एक बार और ये जीवन हमें परमेश्वर ने एक भेंट के स्वरूप दिया, एक उपहार के स्वरूप दिया। हम उसका आदर करें और परमेश्वर को हमेशा हम याद रखें और इस एडवेंट सीजन को भी याद रखें कि हमें अपने जीवन को तैयार करना है और परमेश्वर के साथ अपनी संगति को हमें और मजबूत करना है। गॉड ब्लेस यू ऑल अबंडेंटली।